Hello everyone, welcome back to EVS class. So how are you all? I hope you are all good and safe at your home. So in previous video we learned about food for health. Okay, so without food we cannot live. We need food to live and grow. It gives us energy to work and play. So we divided food in three groups. One is energy giving food, second is body building food, and third is protective food. So energy giving food gives us energy to work and play. Examples: rice, potato, sugar. Okay. So next, body building food helps us to grow, and these food items make our bones and muscles strong. So example: milk, eggs, chicken, meat, etc. Okay. So protect food keeps us from falling ill. So examples are fruits, vegetables and nuts. Okay. So in energy giving food we get carbohydrate, and in body building food we get proteins, and in protective food we get vitamins and minerals. Okay. So also we learned meals in a day. Okay. So a particular type of food that we eat at particular time of the day is called a meal. Okay. So usually we eat 3 meals a day. One is breakfast, lunch and dinner. Also we learned some key healthy eating habits. So today we are going to start new chapter, housing and clothing. Okay, these are also very important for us because without house हम रह ही नहीं पाते है ना. We all need house. So why we need house? The house protect us from heat, cold, wind and rain. Okay, so different people live in different types of houses. Okay, so in this chapter we are going to learn about houses are made of different materials, types of roofs, types of houses and clothes. Okay, so हम इस चैप्टर में क्या लर्न कर रहे हैं? हाउस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब जो हाउस बनाने के लिए हमें मटेरियल्स चाहिए उसके बारे में जान रहे हैं. और टाइप्स ऑफ रूफ्स, रूफ्स मीन्स छत. ओके, तो सबके घर पे अलग अलग छत रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे. और टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे. और क्लॉथ्स, जो हम समर विंटर में जो अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं. ओके, so today we are going to start new chapter. The chapter name is housing and clothing. Okay, so first of all we will do this exercise. Okay, this one: help the box reach the pig with the weakest house. Okay, so weakest house को हमें pig को पहुंचाना है. Okay, तो यहाँ पे देखिए, these are all पक्का house. This is also पक्का house. This is also ओके. सो वीकेस्ट हाउस कौन सा है हमारा इसमें? ए. सो यहाँ पे आपको लाइन करना है. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 66. ओके, 66. सो 66 में हम जान रहे हैं हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ओके, so this one. Okay, so these are houses, like house made of bricks and cement, house made of mud and straw. Okay, so what is called this house is called kacha house and this is pakka house. ओके, तो पक्का हाउस बनाने के लिए हमें मटेरियल्स लगते हैं सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, स्टिक्स, ये सब पक्का हाउस में लगता है. लेकिन जो कच्चा हाउस है उसमें सिर्फ मड और स्ट्रॉ ही लगता है. ओके, सी दिस हाउस. ओके, ये हाउस जो बना है ये है मड एंड स्ट्रॉ से.
और ये हाउस बना है सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड एंड स्टिक से बना है। ओके, सो इसमें स्टील भी लगता है, लाइक आप विंडोज़ देखते होंगे। ओके, सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ओके, तो पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स टू बिल्ड हाउसेस, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, स्टिक्स, मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा are some of the things used to make houses. Houses are also made from blocks of ice. Okay, वो बाद में देखेंगे। Okay, so there are two types of house. So one is कच्चा house and another is पक्का house. Okay, तो इस house को हम कच्चा house बोलते हैं, इसको हम पक्का house बोलते हैं। Clear? तो house बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सीमेंट, bricks, stones, wood, sticks, mud and straw. Clear? Okay, so next move to type of roofs. Roofs means छत। आप ये देखते हो, ये छत बोलते हैं इसको रूफ बोलते हैं। ओके, तो छत है उसको हम रूफ्स बोलते हैं। सो द रूफ ऑफ हाउसेस में बी फ्लैट और स्लोपिंग। तो हाउसेस में रूफ में टू टाइप्स है, वन प्लेन है, एक स्लोपिंग है। हाउसेस इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ। ओके, सो मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। सी दिस वन। ओके, ये क्या है? ये स्लोपिंग रूफ है। ये जो है इसको हम रूफ बोलते हैं, मीन्स छत। आप अपने घर देखिए, आपका छत दिखेगा, ये स्लोपिंग रूफ है। और जो प्लेन रूफ है, सी ये है प्लेन रूफ। ओके, आपको दिख रहा है? प्लेन रूफ कहाँ रहते हैं? जहाँ ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पे प्लेन रूफ होते हैं। लेकिन ये स्लोपिंग रूफ कहाँ रहते हैं? सो माउंटेन में। ओके, पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स मेक हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स सो दैट द स्नो कैन ईजिली फॉल ऑफ फ्रॉम द रूफ। पीपल लिविंग इन प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेस ऑन स्टिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। ओके, ये स्लोपिंग रूफ हमें कहाँ पाए जाते हैं हम लोग? माउंटेन्स में, बिकॉज माउंटेन्स में आइस फॉल होती रहती है। अगर वो आइस फॉल होती है तो ये प्लेन रूफ में आइस रुक जाता है, इसके बदले वो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं ताकि आइस इजीली नीचे आ जाए। क्लियर? तो हमें स्लोपिंग रूफ कहाँ देखने के लिए मिलता है? माउंटेन्स में। ओके, वहाँ पे आइस फॉल होती है तो आइस इजीली नीचे गिर जाए, इसीलिए ऐसे स्लोपिंग रूफ। आपको ये पता है कैसे लग रहा है आपको? स्लाइडिंग। जब आप पार्क में जाते हो, स्लाइडिंग करते हो, तो आपको पता है आप स्लाइड करते वक्त नीचे कैसे आते हो? वैसे ही ये स्लोपिंग रूफ में आइस स्लाइड होके गिर जाता है। क्यों ये लोग ऐसे करते हैं? ताकि अगर छत पे बर्फ़ जम गया तो वो मेल्ट होके फिर पूरे घर को कोलैप्स कर देता है ना? तो इसीलिए आइस फॉल करने के लिए ऐसे स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। ओके, सो ये हम पढ़ रहे हैं। ओके, दिस वन, पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स मेक हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ। जो माउंटेन में रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। ओके, स्लोपिंग मीन्स स्लैंटिंग रूफ। ओके, सो प्लेन्स मीन्स प्लेस दैट आर नॉट हिली। ओके, जो जहाँ हिल स्टेशन नहीं रहती है, लाइक हमारा मोरबी, राजकोट, ये हिली एरिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग प्लेन रूफ बनाते हैं। ओके, तो आप बारी आती है ये स्लोपिंग रूफ, मैंने एग्जाम्पल दिखाया स्टिल्ट हाउस। Okay, we are talking about stilt house. Okay, this is stilt house. स्टिल्ट हाउस कहाँ होता है? ज़्यादातर असम में होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आती रहती है और बारिश होता रहता है तो घर में पानी घुस सकता है, इसीलिए आसामी लोग ज़्यादातर स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। ये मोस्टली वाटर के अबव रहता है ये घर, और ये वुड से ही बनता है, ज़्यादातर वुड से ही बनता है। इसको हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ओके, तो स्टिल्ट हाउस हम कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर आसाम में। ओके, सो नेक्स्ट हम जानते हैं पेज नंबर 67। दिस इज टाइप्स ऑफ हाउसेस।
Okay, so people make different types of houses. House made of bricks and cement are called पक्का house. This is पक्का house. पक्का house के लिए क्या क्या चाहिए? I am going to show you पक्का house का picture. These are all पक्का house. Okay, see, this is पक्का house. पक्का हाउस क्यों हम पक्का बोलते हैं? क्योंकि ये बारिश आए या हवा आए ये घर नहीं गिरता है। तो ये करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स लगता है? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, स्टील, वुड, देर आर मेनी मटीरियल्स। ओके, जो मेन रहता है वो है bricks and cement. So houses made of bricks and cement are called पक्का हाउस। आपको इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू कच्चा हाउस। ये कच्चा हाउस है, मतलब आपको ज़्यादा बारिश आए या तूफान आए तो ये घर उड़ जाता है, लेकिन पक्का हाउस ऐसा नहीं होता है। तो कच्चा हाउस क्यों ऐसा है? बिकॉज हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउस। तो ये जो बना है ना, ये मड और स्ट्रॉ से बना है। यहाँ पे आपको मड दिख रहा है और ये स्ट्रॉ, ये सब। ओके, तो इससे ये हाउस बना है, तो ये कच्चा कहलाता है। ओके, तो पक्का नहीं कहलाता है, क्योंकि पक्का हाउस कभी गिरते नहीं है। ओके, सो कच्चा हाउस ज़्यादा बारिश आए या कुछ हो जाए तो बारिश में तो वो कच्चा हाउस कोलैप्स हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट आइस हाउस। अब सब जानते हैं कि आइस का भी हाउस रहता है। यस, पहले कनाडा में एस्किमोज रहते थे। एस्किमोज एक जनांग है उनका, वो लोग एस्किमोज इग्लू हाउस बना के उसमें रहते थे। आप देख रहे हो, हम ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दे बिल्ड हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो ये मेड ऑफ आइस रहता है। आप देख सकते हो आइस क्यूब से ये बना रहता है। अभी ये ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन पहले कनाडा में एस्किमोस जनांग रहते थे, एस्किमोस पीपल। ओके, दे वर मेक दिस हाउसेस, मतलब वो आइस ब्लॉक से हाउस बना के उसमें रहते थे। ओके, तो इग्लू है वो बना है आइस बॉक्स से। ओके, तो सम पीपल मेक टेम्पररी हाउस। ओके, लाइक अभी हम 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, तो हम टेंट हाउस बनाते हैं। एक क्लॉथ से बनता है। ओके, थिक क्लॉथ रहता है प्लास्टिक का, उससे हम टेंट बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं टेम्पररी हाउस। तो टेम्पररी हाउसेस कौन से हैं? टेम्पररी हाउसेस है सी, टेम्पररी हाउसेस, कार्बन, टेंट एंड हाउस बोट। ये 3 एग्जाम्पल्स है। दीज आर ऑल टेम्पररी हाउस, मतलब टेम्पररी। ये हम ज़्यादा दिन इसमें नहीं रह सकते। ओके, तो कैसे नहीं रह सकते? देखिए यहाँ पे टेंट है। जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम क्लॉथ लेके जाते हैं, या तो प्लास्टिक शीट रहता है उसे हम टेंट बनाते हैं, ताकि एडवेंचर करने गए रहते हैं तो 1-2 दिन रहना रहता है, तो हम टेंट बना के उसमें स्टे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारी आती है टेंट के बाद कारवन। कारवन जो है वो व्हील्स के ऊपर चलता है। ओके, कारवन में कौन जाता है? ये देखिए, दिस इज कारवन। ओके, कारवन। सो कारवन में जो पीपल मतलब एक जगह नहीं रहते हैं। ओके, उसको नोमैड्स बोलते हैं हम लोग, नोमैड्स पीपल। ओके, बंजारा बोलते थे पहले लोग। वो लोग मतलब एक प्लेस पे वो घर बना के नहीं रह सकते। जैसे उनका वेदर चेंज होता है या फिर उनको दूसरी जगह काम करना रहता है, तो वो प्लेस टू प्लेस जाते हैं ना, तो इसीलिए उनको वो कारवान यूज़ करते हैं। ओके,
सो कारावन में नोमैड्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इवन हम भी कभी कभी पिकनिक वगैरह जाते हैं तो कारावन बुक करते हैं, क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटीज़ रहती है, किचन, बाथरूम वगैरह सब। ओके, तो कारावन व्हील्स के ऊपर चलता है, और कारावन में जो पीपल एक जगह से जो दूसरी जगह मूव करते हैं उन्हीं लोगों को यूज़ होता है, सबके लिए यूज़ नहीं होता है। ओके, सो हाउस बोट, अभी हम हाउस बोट के बारे में जानेंगे। ओके, सो दिस इज हाउस बोट। ओके, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको दिख रहा है? ये हाउस बोट है, ये भी खास करके टूरिस्ट के लिए रहता है। ये ज़्यादातर आपको केरला में मिलेंगे, केरला और इवन जम्मू कश्मीर में भी हम हाउस बोट हमें देखने के लिए मिलता है। ये हाउस बोट, उसमें हम रह नहीं सकते कि हमेशा के लिए हम पानी में नहीं रह सकते, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए रहता है। ओके, जैसे केरला आप घूमने गए तो आप हाउस बोट पे पूरा घूम सकते हो, और इवन जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी हाउस बोट आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सो ये हमने जाना हाउस के बारे में। ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, वन इज कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। सो सीमेंट ब्रिक्स जो बनता है उसको हम पक्का हाउस बोलते हैं। ओके, लाइक हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉल्ड पक्का हाउस, and houses made of mud and straw are called कच्चा houses. ओके, सो इग्लू हाउस हमने जाना, तो इग्लू हाउस ज़्यादातर कनाडा में, आउट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी इंडिया में मनाली में देखा गया है, ऐसे सुने हैं, तो मनाली में भी आप इग्लू देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमने जाना टेम्पररी हाउसेस लाइक टेंट, कारावान एंड हाउस बोट। ओके, टेंट हम जब भी हम पिकनिक पे कुछ एडवेंचर करने जाते हैं तो हम थिक क्लॉथ रहता है प्लास्टिक, उससे हम टेंट बनाते हैं 2 दिन रहने के लिए। फिर कारावन में नोमैड्स यूज़ करते हैं, जो मतलब वो एक प्लेस में नहीं रह सकते, तो प्लेस टू प्लेस वो मूव करते रहते हैं, उनको वो कारवान यूज़ होता है। नेक्स्ट हाउस बोट जस्ट टूरिस्ट के लिए, लाइक आपको रिवर में घूमना है तो रिवर के ऊपर तो वो बोट करता है हाउस बोट, तो ये ज़्यादातर केरला और जम्मू कश्मीर में मिलता है। ओके, तो हमने हाउसेस के बारे में जाना, लाइक अपार्टमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। अपार्टमेंट में बहुत सारे रूम, बहुत सारे हाउसेस रहते हैं ना, एक अपार्टमेंट 20 हाउसेस रहते हैं, 30 हाउसेस रहते हैं, 7 हाउसेस रहते हैं, उसको हम अपार्टमेंट बोलते हैं। ओके, अपार्टमेंट। और जो है टर्नामेंट हाउस मीन्स सिंगल, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम अपार्टमेंट नहीं बोलते हैं। ओके, सो हाँ, ये भी सीमेंट और ब्रिक से ही बना रहता है, ये कच्चा हाउस नहीं कहता है, इसको हम पक्का हाउस बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जानेंगे, लास्ट पैराग्राफ रह गया है about clothes. Okay, clothes we wear. So clothes protect our body from heat, cold, wind and rain. We wear different types of clothes in different seasons. We wear cotton cloths in summer and woolen cloths in winter. Okay, there are 2 cloths given here, one is cotton cloths and second one is woolen cloths. So I am going to show you about cotton cloths. So we are going to discuss about cloths. Okay, so where do we get cotton? We get cotton from cotton plants. एक कॉटन से एक कॉटन क्लॉथ्स बने हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? समर में, बिकॉज समर में हीट रहता है तो हमारे बॉडी को कोल्ड की ज़रूरत रहती है। ओके, सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर because cotton cloths absorb our sweat and keeps us cool. Okay, that's why we are wearing cotton cloths in summer only. Okay, so cotton, we get cotton from cotton plants. Next, this is woolen. तो वुलन हमें कहाँ से मिलता है? शीप से। शीप गिव्स अस वुलन। सो वुलन हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में, बिकॉज विंटर सीजन में कोल्ड रहती है, सो हमारी बॉडी को हीट की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई वी वेयर वुलन क्लॉथ्स
इन विंटर सीजन बिकॉज वुलन क्लॉथ्स हमारे बॉडी को वार्म अप करता है, ओके मतलब वार्म रखता है, हीट रखता है, इसीलिए हम वुलन क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं। नेक्स्ट है रेनी सीजन, ओके तो रेनी सीजन में हम प्लास्टिक का रेनकोट पहनते हैं ताकि हम बारिश से बच सके, ओके तो पानी में भीगने से हम बीमार होते हैं, तो इसीलिए बारिश में हम कौन सा क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, रेनकोट, ओके ये प्लास्टिक से बना रहता है, इसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, वो स्लाइड होके चला जाता है, ओके सो दीज आर ऑल हाउसेस, दिस इज कॉल्ड अपार्टमेंट, टर्नामेंट, दिस इज कच्चा हाउस, this is houseboat. We found houseboats in Kerala and Jammu Kashmir. This is also we learnt about roofs. Roofs means chat, okay there are two types of roofs, one is sloping and another is plain. This is plain roof, okay and this is स्लॉपिंग रूफ्स। स्लॉपिंग रूफ्स कहाँ रहते हैं, मैंने बताया माउंटेन्स में, हिल्स में, ताकि माउंटेन्स में आइस फॉल होती है तो आइस घर के ऊपर ना जमे, इसीलिए वो लोग स्लॉपिंग रूफ बनाते हैं ताकि आइस स्लाइड होके नीचे गिर जाए और उनका घर कोलैप्स ना हो, इसीलिए ओके। ये टेंट है, ये इग्लू है, ये स्टिल्ट हाउस है। स्टिल्ट हाउस जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और फ्लड आने का डर रहता है वहाँ पे वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं, ओके। सो ये हमने जाना हाउसेस के बारे में। सो आज आपको क्या करना है, आज आपको ये एक्सरसाइज करना है होमवर्क में, प्लस आपको कीवर्ड्स भी लिखना है आज, ओके। सो दिस वन, दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क, ओके। सो इसके बारे में और जानकारी दूंगी जब हम नेक्स्ट बोर्ड वर्क करेंगे, तो उसमें अच्छे से हम रूबरू एक्सप्लेन करेंगे तो सही रहेगा, ओके। सो आपको आज होमवर्क में वो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ऑल्सो एक कीवर्ड्स आपको 4 नंबर नोटबुक में लिखना है। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क, ओके। सो be safe, have a wonderful day children, bye bye, take care.